Hi guys, welcome back to the channel, and this is your super educator Shipra Mishra. I hope you guys are doing fine, and if you're new to this channel, kindly consider subscribing to the channel because yeah, that way you'll know about everything that is coming on the channel and आपको सारी की सारी चीज़ों के बारे में पता होगा तो you'll be able to crack it. Again, if you don't know me, this is your super educator Shipra Mishra, and I am #1 educator in your category. You can follow me on Unacademy and get access to everything that I share, in my community and sari papers and the sheets and everything. So make sure that you are part of my community. But to become a part of my community, you need to follow me. So please follow me on Unacademy. Also, in addition to all this, you can become a part of my iconic or plus community, plus where you're going to get live classes, weekly tests, structured courses, unlimited access. ये सारे features के addition में you're going to get personal guidance, test analysis, experts guidelines, study material, study planner, and so much more. Let me tell you, you can select whatever plan that you feel like. जो भी आपको plan अच्छा लगता है आप यहाँ से select कर सकते हो, and जो भी आप plan select करते हो, make sure that you use my code. My code is SDC Live. ये code को लगा डाला तो मजा आ जाएगा क्योंकि आपको मिलेगा minimum 10% discount, and with every offer and the offers and everything going on, you're going to get best deal. आपको SDC लाइव लगा लेना है और यहाँ पे लगाकर आपको मिलेगा बेस्ट से बेस्ट डील. अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है और अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल का मतलब है आपको मिलने वाला है 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन, वो भी इन जस्ट ₹299. नो वेट, 299 भी नहीं, क्योंकि अब आपको मिलने वाला है अनअकैडमी का 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन. 299 नहीं, SDC लाइव लगाकर आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा ₹239 में. दैट मीन्स 20% का फ्लैट डिस्काउंट. You can use my code and get 45 days का plus subscription for IIT JEE, NEET UG, classes 8, 9, 10th, 11th, 12th के लिए. But this is valid कब से कब तक? April 23 से April 30th तक. आप इसकी मदद से सब वो कर सकते हो जो प्लस में है. You're going to get access to mock tests and quizzes and live classes with top educators and structured courses and notes and guidance from CBSE guidance for CBSE board preparation. In addition to which, you're going to get raise a hand feature. You can get your doubts resolved and so much more. So subscribe to Plus right away because इससे सस्ता ये कभी नहीं था और कभी नहीं होगा. So become a part of my Plus community and get access to सारे top educators का class. Become a part of Unacademy Learning Festival. So आज का जो हमारा वीडियो है, आज का हमारा जो क्लास है, what is it about? It's about your perfect timetable. The perfect timetable that will help you score 40 out of 40 in English. Because the exams are right around the corner, and for optional subjects exams have already begun. तो already शुरू हो चुके हैं, and English exam is right around the corner and we need to prepare for English. अब तो कम से कम करना ही पड़ेगा. So अभी हमारा क्या टाइम टेबल होना चाहिए इंग्लिश के लिए, चलिए देख लेते हैं. इंग्लिश का टाइम टेबल में अब से अगर आप पढ़ना शुरू करते हो 13 तक, कौन सी चीजें हैं जो आपको रिलीजियसली करनी है. लेट्स सी, अभी चेक करते हैं. लेट्स चेक. सबसे पहली चीज है आपको 30 मिनट्स. सी, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू 10 बजे से 10:30 बजे, 11 से 12, बिकॉज सबका अपना अलग टाइम टेबल और स्केड्यूल होता है. आपके घर के अंदर अलग टाइम टेबल, अलग स्केड्यूल होगा, मेरे घर के अंदर अलग है. आई कांट टेल यू कि 10 बजे ऐसे करना है, हो सकता है आप उठो भी ना. सब कोई नाइट आउल है, कुछ है, क्या है. सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू ऐसा पूरा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू जो टाइम आपको, जो ड्यूरेशन है जो आपको लगाना चाहिए इफ यू वांट टू स्कोर 100% मार्क्स. 30 मिनट्स का रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का प्रैक्टिस जो है, इसको तो कसम खा लो नहीं छोड़ोगे.
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस कुछ भी हो जाए, कोई आपका एग्जाम ही क्यों ना हो, नहीं छोड़ना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज समथिंग जिसकी वजह से हमारा टर्म 1 जो है वो सफर कर गया था। हमने सीख लिया है और हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को नहीं छोड़ने वाले हैं। द मिनट यू लीव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इट्स लाइक लीविंग योर मेडिसिन। आप अपना मेडिसिन बीच में छोड़ देते हो, यू हैव टू स्टार्ट द इंटायर कोर्स अगेन, राइट? तो जैसे मेडिसिन होती है जिसको हम रिलीजियसली लेते हैं, एकदम लेना ही पड़ता है जैसा उसका कोर्स है, एग्जैक्टली वैसा ही आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ करना है। Every day 30 minutes till 13th of May, you need to practice reading comprehension and make sure that 30 minutes के अंदर आप एक नहीं 2 passages कर रहे हो। and जब तक वो नहीं होता है, maybe increase the practice session, ज़्यादा टाइम आप लगाइए, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज 30 मिनट के अंदर अंदर आपको ये करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर इसको पहले स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो, द फर्स्ट थिंग दैट यू गोइंग टू अटेम्प्ट इन योर पेपर, यू थिंक दैट यू गोइंग टू अटेम्प्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट रीडिंग के भी इसके अंदर ऐड कर लो। तो जो बच्चे अभी नहीं इतना ज़्यादा अच्छे हुए हैं, नाउ इज़ द हाई टाइम। So ज़्यादा से ज़्यादा you can take 45 minutes because we have 15 minutes of reading time, you can utilize that time. But ये इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है. So make sure 45 minutes daily you are devoting to reading comprehension. English का सबसे बड़ा issue यही है, people think that all they need to do is literature. But literature will only come for some marks. Reading comprehension 14 नंबर का है, 8 नंबर का ऑन द टॉप ऑफ इट राइटिंग सेक्शन है। सो लिटरेचर दोनों से ज़्यादा मार्क्स का नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 14 मार्क्स का है, तो इसको उतनी इज्जत देनी है। एवरी डे 45 मिनट्स, अगर आप 30 मिनट्स में नहीं कर पा रहे हो, 45 मिनट्स बार बना लो, इससे ऊपर नहीं जाने का है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। सो गिव 30 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स इन केस फॉर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन डेली। ओके, इसके बाद में आपको यहाँ पे एक पेपर करना है। ये तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तो अलग है। द पेपर्स दैट आई विल गिव यू, वो पेपर्स में से आपको सॉल्व करना है। देन आपको यू नीड टू डू 1 सैम्पल पेपर डेली आफ्टर फ्रॉम 8th, आई एम सॉरी, आफ्टर 7th, सो फ्रॉम 8th May to 12th May। 8th से 12th May तक, in addition to reading comprehension passages that you are doing, you have to also do sample papers. कितने टाइम में होंगे ये सैम्पल पेपर्स? ये होंगे आपके 2 hours plus 15 minutes में। Make sure that you're not taking more than this. इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए, लग रहा है तो पेपर छूटेगा। सो इट्स हाई टाइम कि हम लोग और ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अगर आपको इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको प्री बोर्ड में लगा था, कभी भी लग रहा है, पेपर छूट जाएगा। सो मेक श्योर कि इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। सो 8th से 12th मई तक आपको ये करना है। ये दोनों का ही टाइम, इवन इफ आप नाइट आउल हो, कोशिश करना एग्जाम टाइम रखो। आपका एग्जाम का जो टाइम है, आप उसी टाइम पे इन दोनों की प्रैक्टिस करो। एंड फॉर दैट मैटर, आपका कोई और भी जो पेपर की आप पढ़ाई कर रहे हो, वो भी, उसका भी प्रैक्टिस आप उसी टाइम पे करो। बहुत सारे लोगों का रूटीन जो है वो एकदम गड़बड़ाया हुआ है। आधे बच्चे नाइट आउल है क्या नहीं है, उसकी वजह से जो एग्जाम टाइम है उस पर या तो खा रहे हैं या सुस्ता रहे हैं, सो रहे हैं। उससे होगा क्या कि वही चीज रहेगा, और जब अब आप जाके डायरेक्ट पेपर में बैठोगे, नींद आएगी। क्योंकि आपने जब आपको प्रिपेयर करना था, जब आपको अपने दिमाग को प्रिपेयर करना था कि भाई तेरे को पूरे दिन के अंदर ये जो 9 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जगह रहना है, तो उस टाइम पे तो तू सो रहा था। सो योर ब्रेन विल बी लाइक कि भाई अब मैं कैसे जगूं। सो यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन के 9 बजे से लेकर 2 बजे तक वो एक्टिव रहे। ये आपके मोस्ट एक्टिव आवर्स होने चाहिए। ये सबसे ज्यादा एक्टिव होने चाहिए, ताकि आप जब पेपर लिख रहे हो तो आपको नींद ना आए। सो इसके लिए आप जो भी प्रैक्टिस करोगे, नॉट जस्ट फॉर इंग्लिश, मेक श्योर फॉर एवरी चैप्टर दैट यू आर डूइंग, एवरी सब्जेक्ट दैट यू आर डूइंग, एग्जाम टाइम जो है आपका 9 बजे से 2 बजे का,
9 AM से 2 PM का, ये जो है ये टाइम में ही आपको ये सब कुछ करना होगा। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करना है और आपको यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिस है सैंपल पेपर का ये करना है। ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपको छोड़नी नहीं है। अब आते हैं ऐसे बच्चे पर, मैम मैंने तो इंग्लिश पढ़ना ही अभी शुरू किया है, आप मेरे से प्रैक्टिस करा रहे हो, मेरे को तो ये नहीं पता सिलेबस क्या है, अब क्या करूँ है। आपका कुछ तो टाइम टेबल होगा जिसमें आप पढ़ते होंगे, नहीं है तो 9 बजे से पहले उठना शुरू करो। अगर आप एक नाइट आउल हो या कुछ भी ऐसा है, आप रात में ज्यादा पढ़ते हो, तो वॉट जो आपका पढ़ने का स्लॉट है, इंग्लिश कॉमर्स के बच्चों का पहला पेपर है, साइंस के बच्चों का दूसरा पेपर है, और ह्यूमैनिटीज का तो ऑलमोस्ट सारे ऑप्शनल वगैरह मिलाकर 26 से ही शुरू हो गया है, तो भगवान जाने कौन से नंबर का पेपर है। बाकी लैंग्वेज में अगर हम देखें, हिंदी इससे पहले हो जाएगा। तो इंग्लिश जो है इसकी तैयारी आपको ऐसे करनी है कि अब क्योंकि ये करीब आ रहा है और आपने नहीं इतना ध्यान दिया है, तो जो आपके पढ़ने का स्लॉट है, एवरी डे आपको, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है, आपके अगर एग्जाम चल रहे हैं बाकी, आपका जब भी आपको इससे पढ़ना शुरू करना है, जो मुझे लगता है कि आप तो कर देना चाहिए, एवरी डे मेक श्योर कि इन एडिशन टू ऑल दिस प्लीज ट्राई, क्योंकि प्री बोर्ड आपने दिए होंगे, हर चीज आपने की होगी, ऐसा नहीं आपने नहीं किया कुछ। तो ऐसा मत सोचना अभी तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, सैंपल पेपर तो मैं क्या कहाँ लिखूंगा, नहीं, आपको करना है। पेटेंट बॉडी को याद करने में, पेटेंट बॉडी की क्लास और वीडियो देखने में मुश्किल से कुछ घंटे लगने वाले हैं। आपने वो देखा, राइटिंग सेक्शन तैयार, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तो अनसीन है, कुछ नहीं जाएगा, उसको तो करना ही है। रही बात लिटरेचर सेक्शन की, जितना भी आता है जो भी आता है लिखो, पर ये प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द प्रैक्टिस दैट विल ट्रेन योर ब्रेन, आपके ब्रेन को ट्रेन करेगी कि वो एक्टिव रहे, और वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में ऐसे क्वेश्चन जो कभी देखे हुए भी नहीं है उसके अंदर वो एक्टिव रहे और एक्ट करे। So it's very important that you don't skip these even if you don't know anything about English. All right. So make sure कि ये सब कुछ जो है इसकी addition में, if you have not already started, studying, allot 2 hours daily. So इसके addition के अंदर 2 घंटे आपको daily करने हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ये 2 घंटे का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन anyway आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। There is nothing जो आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के अंदर इसके अलावा करोगे। सो ये 2 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, इस 2 घंटे के अंदर 30 मिनट्स जो है वो आपको अलॉट करने हैं डेली राइटिंग सेक्शन के लिए। राइटिंग सेक्शन में क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार मेरा जो पेटेंट बॉडी और समझने वाले वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, वो देख लेना है। और वो आपने देख लिए एक बार, आपने एक दिन इनविटेशन देख लिया, दूसरे दिन हो सकता है जॉब एप्लीकेशन, तीसरे दिन रिपोर्ट देख लिया, या एक दिन शिद्दत से बैठे 2x पे सब देख डाला, तो जो भी है आपने कर लेना है। और जैसे ही आपने एक बार वो पेटेंट बॉडी आपको पता चल गया, एवरी डे 30 मिनट्स के लिए आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आपके पास कोई किताबें होंगी, कोई सोल्यूशंस होंगे, आपने किए हुए होंगे, स्कूल में कराए हुए हैं, गूगल पे आपको मिल गए हैं, टेलीग्राम पे कहीं मिल गए हैं, मेरे आपको मिल गए हैं, कुछ भी है, आपको 30 मिनट्स के लिए कोशिश करना है कि आप प्रैक्टिस ना भी करो बट रीड करो। यू नीड टू नो द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आए हैं, और उनका आंसर कैसे लिखा गया है। बिकॉज जैसे आप रीड करते रहते हो, यू नो मोर, आपको ज्यादा वर्ड्स के बारे में पता चलता है, फॉर्मेट के बारे में पता चलता है, लिखने के तरीके के बारे में पता चलता है, फिर आप लिख पाओगे। ये सैम्पल पेपर में प्रैक्टिस करोगे, एनीवे उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो वो 30 मिनट्स के अंदर यू जस्ट नीड टू रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनी क्वेश्चंस दैट आर अवेलेबल एनीवे, बट मेक श्योर that whatever questions that you're reading answers to, वो क्वेश्चन सीबीएसई के हो, वो क्वेश्चन के आंसर सीबीएसई के आंसर्स से मैच होने चाहिए। कुछ भी तो क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं पढ़ लेने हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स जो कि इनविटेशन में थर्ड पर्सन मानती ही नहीं है, अ लॉट ऑफ बुक्स जो कि फॉर्मेट ही नहीं मानती है, जो हमने किया है, जो सीबीएसई बताता है। तो मेक श्योर कि वो सीबीएसई के अकॉर्डिंग हो। रेस्ट ऑफ 1.5 आवर्स जो है वो आप लगा सकते हो आपके लिटरेचर में। आई थिंक इतने बड़े चैप्टर्स नहीं हैं कि इससे ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। आप 1.5 घंटे के अंदर अंदर आई थिंक चैप्टर्स जो है वो फिनिश कर सकते हो। एवरी डे भी अगर आप लेकर बैठोगे तो देर आर लाइक 4 टॉपिक्स इन फ्लेमिंगो एंड 3 टॉपिक्स एंड इन विस्ता 7 टॉपिक्स ऑल टुगेदर। इनमें से 2 पोएट्री हैं, दैट विल नॉट कंज्यूम मच ऑफ योर टाइम।
So you can devote 1.5 hours learning new things, learning new words, going through summaries, going through keywords, going through characters, titles, themes, whatever. You can do as per you. बिकॉज सी आपको पता है कि आपने अभी कितना प्रेपरेशन किया. अकॉर्डिंग टू मी, मेरे बच्चे जो मेरे साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं, 100वीं बार रिविजन हो चुका है उनका. सो उनका तो छोड़ो, तो आपका कितना हो रखा है वो आई डोंट नो. तो इसके लिए मेक श्योर कि आप 1.5 आवर्स जो है वो कम से कम आप डिवोट करो ये सारी चीजों को प्रिपेयर करने के लिए. वंस यू प्रिपेयर ऑल दीज थिंग्स, आपका कह सकते हैं जो काम है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है. आज तक अगर एनसीईआरटी को रीड नहीं किया है, ये 1.5 आवर्स में जल्दी से एनसीईआरटी को रीड कर लो. ये 1.5 आवर्स में आप रीड कर पाओगे. आपको एकदम तसल्ली से पूरे साल अगर आपने किताब नहीं खोली है, तो अब बैठ के तसल्ली से एनसीईआरटी करने का कोई मतलब नहीं है. जस्ट स्किम थ्रू इट so that you know, you come across words, you come across statements, you come across जो भी कैरेक्टर्स हैं. यू कैन ऑल्सो टर्न ऑन माई क्लास, और क्लास को देखते देखते यू कैन ऑल्सो गो थ्रू एनसीईआरटी, वो उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा. सो ये आप कर सकते हो 2 घंटे एवरी डे फॉर लर्निंग, फॉर ओनली पीपल जिन्होंने नहीं कुछ भी पढ़ा है, उनको नहीं पता इंग्लिश के बारे में. जिन लोग का रिविजन ऑलरेडी हो चुका है, यू कैन स्किप दिस, डोंट डू दिस, डोंट वेस्ट योर टाइम. एंड ये करने के बाद में फॉर पीपल जिनका अभी अभी उन्होंने पढ़ना शुरू किया, 2 घंटे यहाँ पे चाहिए, 30 मिनट्स के लगभग यहाँ पर चाहिए, तो 2 घंटे, दिस इज 2.5 घंटे, लगभग 5 घंटे आपको दिन के अब देने पड़ेंगे इंग्लिश को. जब आप लास्ट में पढ़ते हो तो यही होता है, आपको पूरे जो साल बच्चे पढ़े हुए हैं उनके साथ कॉम्पीट करना है. एंड जब वो करना है तो यू हैव टू डबल अप. जो बच्चों ने ये पहले ही कर लिया है, मेरे साथ रिवीजन कर चुके हैं, अब वो क्या करेंगे, वो सिर्फ लगभग 2.25 घंटे, दैट इज ये जो 2 पॉइंट कह सकते हैं 2 आवर्स 15 मिनट्स और ये हैं, तो 2 आवर्स 45 मिनट्स जो हैं उन्हें डेली के देने हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस. और वो इसके लिए देने हैं, और ये तो आई थिंक शुरू ही आपको 8th मई से करना है, उससे पहले करने की जरूरत नहीं है. तो आपने ये इसके लिए करना है क्योंकि अब इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट है नहीं. अभी भी आप सोचो कि मैं 12 को पढ़ के चला जाऊंगा और इंग्लिश क्रैक कर लूंगा, नॉट पॉसिबल. पहले होता था जिसमें आप समरी करके चले जाते थे और लाइफ एकदम शॉर्ट थी, फॉर्मेट ही रट के चले जाते थे, सोचते थे राइटिंग स्किल्स में और क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तो ऐसे भी वहाँ जाके करेंगे, बट अब वो नहीं है. आई होप आपने अपना लेसन टर्म 1 से सीखा होगा. एंड कितना भी कोई भी एंट्रेंस टेस्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, 12th इज स्टिल इम्पॉर्टेंट. यू नीड 50% सबसे पहले एटलीस्ट. इसके ऊपर से इफ यू आर नॉट एमिंग एट the central university, if you're trying for some private university or the state university जो कि CUET एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्या मुंह लेकर जाओगे उनके पास में 50% की मार्कशीट लेकर. You need more marks. So इसके लिए it's still important, it's very important if you're not applying central universities के अंदर. If you are applying in central universities तब भी it's important because you need 50% marks at least. And English में वो अब थोड़ा मुश्किल है अगर आपने नहीं पढ़ा है. तो पहले ऐसा होता था कि मिल जाते थे, अब नहीं है. मार्किंग स्कीम जो है उसमें क्लियरली दिया हुआ है कि कुछ भी लिख दिया है नहीं देने हैं उसके नंबर. तो आप कुछ भी लिख कर आ जाओगे, उसके नंबर नहीं मिलेंगे. नंबर के लिए वो अलग अलग से बताया हुआ है किस किस में कितने कितने देने हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं. तो मेक श्योर दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम कि चलो अब मैं वेस्ट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, मैं 12th को कर लूंगा, हो जाएगा मेरा, वन शॉट देखेगा. बट ऐसा नहीं है. दिस इज समथिंग जो आपको ध्यान में रखना चाहिए. इट विल हेल्प यू इंग्लिश को कवर करने के लिए. एंड ऑल्सो आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो. जब भी हमारी क्लासेस होती हैं, ये सब कुछ ऑलमोस्ट मैंने सुबह का बताया है, तो 2 बजे से पहले अनअकैडमी पे क्लासेस एज सच है नहीं. सो 2 बजे तक आप ये सब कंप्लीट करके रख सकते हो इंग्लिश को, जो बच्चे अब रिविजन कर रहे हैं, बिकॉज उनका फर्स्ट पेपर इंग्लिश है. और उसके बाद में इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो टेक योर क्लासेस जो अनअकैडमी पे हो रही है. यू कैन कम टू माई क्लास, आस्क योर डाउट्स एंड स्टफ. You can do all those things. You can come to my one shot, revise again, whatever, everything आप normally कर सकते हो. But this is something that you need to now add आपके पूरे के पूरे schedule में, because it's high time. The first paper कॉमर्स के बच्चों के लिए इंग्लिश एंड साइंस के बच्चों के लिए सेकंड पेपर है, so it's only important. So yeah, that's the timetable that I have for you that you should follow in order to score good marks. यही है जो आपको इसके अंदर करना है. एंड जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनको 5 घंटे लगभग एक दिन के देने हैं. ये सारी चीज़ों के बीच में whatever that you're doing, after every 45 minutes take a break, but not while practicing, while studying, while taking classes or whatever. When you take breaks, you actually recollect your thoughts, and that's how you learn.
ऑल्सो टेक प्रॉपर स्लीप अभी से. डोंट एग्जॉस्ट योर सेल्फ. स्लीप डिप्राइव्ड मत हो जाओ, क्योंकि आप वो हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है बहुत कमाल का काम कर रहे हो एंड यू लाइक मैं 14 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 16 घंटे से पढ़ रहा हूँ, या मैं सोया नहीं हूँ. बट उससे ये होता है कि एग्जाम वाले दिन you're dead. You're not even able to open your eyes and think properly. Sleep is something that is very important. If you are studying but not sleeping, your mind cannot retain whatever that you have studied. People who say that they study for 16 hours a day and they don't sleep, their mind, I don't know, वो कैसे रिटेन करता है. साइकोलॉजिकली माइंड ऐसा नहीं कर सकता है. उसको सोचने के लिए, रिटेन करने के लिए, फंक्शन करने के लिए शट करना जरूरी है. इफ यू कीप योर लैपटॉप ऑन द इंटायर डे, थोड़े टाइम के अंदर उसकी एफिशिएंसी खत्म होने लग जाएगी. एंड दैट इज व्हाई वी शट डाउन, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम. एन एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी जिसे बीट भी कर सकती है, बट ये ह्यूमन ब्रेन है. यू नीड टू टेक स्लीप. यू नीड टू स्टार्ट ईटिंग ऑन अ डिफरेंट टाइम. 9 से 2 के बीच में नहीं. स्टार्ट ईटिंग थोड़ा डिफरेंट टाइम में, अदरवाइज भूख लगने लगेगा क्लास के अंदर. स्टार्ट ईटिंग हेल्दी, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड कि हम बीमार हो जाएं एग्जाम के पहले. स्टार्ट ईटिंग फूड दैट विल कीप यू चार्ज अप एकदम, और लथार्जी नहीं लेकर आएंगे, ऐसे लस्सी वस्सी ये सब नहीं था कि आप सो जाओ. सो जो चार्ज कर दे आपको, बट वो आपको ऐसे लथार्जी ना लेकर आए. स्टार्ट ईटिंग फूड जो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील ना कराए कि अब मैं सो जाऊं. तो वो आपको ध्यान रखना है, अभी से ध्यान रखना है, ताकि से एग्जाम तक पहुंचने तक आपका वो हैबिट बन जाए. ये एग्जाम वाला महीना जो है ये निकल जाए, फिर आप जितने मर्जी चाहे मोमोज खा लेना, छोले भटूरे खा लेना. सो ये जो है, ये कुछ ऐसे टिप्स है जो अब आपको फॉलो करने चाहिए. इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हाई टाइम है एंड यू गोइंग टू बी सराउंडेड बाय बहुत सारा प्रेशर एंड बहुत सारे क्लासेस एंड एवरीथिंग. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. यू गाइज आर प्रेशियस टू अस, सो दैट्स काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट. You can become a part of my special classes, wherein you can study with me for free and with all the top educators. Definitely you can engage or maybe come to my class and have polls, because that's how you understand आप कहाँ तक पहुँचे हो अपने preparation में. And also you can get your doubts cleared in a special class or my special classes. Also you can become a part of my community, wherein I will be sharing a lot of stuff, lot of cool stuff that will help you and maybe आपकी मेहनत को थोड़ा कम कर देगा. सो इसके लिए यू नीड टू फॉलो मी, एंड वंस यू फॉलो मी यू विल गेट एक्सेस टू एवरीथिंग दैट आई शेयर इन माय कम्युनिटी. मेरे कम्युनिटी का लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स below. That's pretty much it. I hope you enjoyed this session. If you did, like, share and subscribe, and I will see you in the next one. Bye bye, take care, and also don't forget to take subscription. Use code SDC Live in 239 rupees. Okay, I'll see you. Bye.